मतलब मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग ओनर्स बताते हैं कि ये वास्तु कंप्लायंट है, तो डू यू थिंक दैट देयर इज अ नीड फॉर यूजिंग दिस वास्तुशास्त्र अ लॉट? वेरी गुड क्वेश्चन. यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा. अभी वी गो टू अ डॉक्टर, ओके, सम डॉक्टर, मेरे केस में हुआ था कि So I would have first objection through your channel for the word mythology. I would request whoever is viewing this video, so just try to put that mythology word aside. Welcome to this podcast, Rahul. We know each other for so many number of years, and you've been a Vastu consultant for my home, and you've also suggested a lot of colors in my office. So I just would like to know what is your journey has been since you've started your YouTube channel as well by name Vasturoop, and you've already have more than 155 videos which is there. And I think it is helping a lot of people to learn about Vastu. So how was your journey from where you started and today where you are? Like, what, just share with us, how was your journey? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये वास्तु कंसल्टेंट का करियर करना है. So it was not this profession was not by choice. You can say it was by destiny. Okay. Because Okay. What happened that there were a lot of issues. And there is a human tendency. Whenever you have issues in life, everyone has issues. Everyone has And issues. you actually learn from the challenges. But when something is not going right, then there is a doubt. You are putting maximum efforts, and still there is something which is lacking, or something we say, suppose it's a luck factor, or a few people tell me. So that point of time, I am talking about somewhere around 2000, January 2000 to be very specific. That time I got introduced with this subject. There is something by name of Vastu and Vastu Shastra. So there was a curiosity to explore, okay, what is the Vastu? How does it work? So then I went through a lot of books, a lot of newspaper articles. I used to purchase books and read books which are available on the bookstall. Earlier there were a lot of bookstalls on the railway station platform. Correct. But then in every book or every article, you only see that this should be here and this should not be here. At that point of time, I'm talking about 23 years ago, hardly anyone spoke about the solution. Correct. It was major upon the demolition part only. कि Yeah. ये ऐसे break कर दो, ये यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए. Say suppose अगर किसी ने घर कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो वो क्या करेगा? अब वो तोड़ तो नहीं सकता. So that created a kind of frustration कि अभी information तो आ गई है. Now, if you want to convert that information into knowledge, you need some guru or someone to guide you. And then, like I said, there are a lot of issues, some education issues. A lot of time I had to change my career, education field also. So when I got introduced, I thought, okay, this could be one of the solution. Like we have astrology, numerology, vastu. And then it was driven by the curiosity. That is the reason why I am over here. Earlier I was doing part-time somewhere around 2009-10. I started consulting part-time along with my job, and some of my clients got very good results. To just share one of the cases that point of time, there was a couple who were too good. They were my friend's friend, I mean office colleague. I had done Vastu in my friend's house, and then they recommended me to his friend or office colleague. They were well-to-do family, everything was going fine, good job, good salary, everything was fine, financially good. They had their own house, bungalow. Then when I met them, at that point of time I was very new. Okay. So they said, okay, we have everything, but the only thing is that our marriage, it's been our 8 years of our marriage. Okay. And unfortunately, there was 4 to 5 times miscarriages. Oh. Due to confidential reasons, we do not disclose the client's name and all. Yeah, that is absolutely accepted. So I told them, see, we are not God. But when I actually gone through their Vastu, I mean their house and their floor plan and all this, and did the grading and took the proper directions, I found that there is something missing, and the energies which actually should support that particular cause, it was not there. And they were ready to do everything. They said कि हमने सब कुछ कर लिया है, पूजा हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, ये भी हो गया, तो हम वास्तु भी करके देखेंगे. If we get the results, it's good, and if it doesn't deliver the result, we are still okay.
So I said, okay, then we will go ahead, and then we did the corrections in their house without any demolition, put some remedies for that. And one special thing, we given them instruction that whatever medical treatment is going on, you continue with that treatment. We are not God, but we will only try to balance those energies in your vastu. Correct. And let's see if it delivers. And the results were fantastic. Wow. And now I think their son is around 11 years. Wow. Oh. So why I'm sharing this case study is because such kind of cases, such kind of clients who have got good results, they actually motivated me to come in this field. So that's how the journey is. And then in 2016 I took the call to get into this field Full time. Okay. Okay. Because you get the satisfaction. If the client is getting result, you have a different kind of satisfaction. Yeah, I know. That is really commendable actually. Ki you are being able to bring some hope in somebody's life, and you've actually delivered results. I would like to just correct you that I am not. Yeah, I know. You have been the messenger actually. We are just a media or a mediator. Yes, absolutely. See, everything is played by the nature. Universe, yes. And we are just, you can say, the conductor of that energy. We, हम लोग उसको योग बोलते हैं. So people are searching, you can get some solution from here, and everything is been interconnected. Correct. I will not take the 100% credit on myself, but it is Shastra. Rather, I would like to give the credibility to the Vastu Shastra. Yeah, that's absolutely correct, and so humble of you to say that. But usually what happens is that many of them share a lot of stories with you. Like, किसी के घर में ये हो गया, वो हो गया. So you also are a human being, right? So somewhere down the line it affects you. Like, I mean, it has been affected in my case. Like when I see two brothers fighting for a property, so, "Arey yaar, what is happening? People are fighting for the property. Income tax mein there is a lot of fights which is going on." So somewhere down the line we try to get emotionally connected. So your case might be even more, because हमारा तो सिर्फ probably money wise होता है, यहाँ पे तो emotional fights भी होता है, emotional sadness also is being passed on to you. So how do you keep yourself detached from it? Like, I mean, I know that you might be practicing a lot of things for that. So can you just throw more light on that? कि क्या करते हो? True, very true. It happens. See, majorly people who are coming to us, the consultants, they are coming with a problem. Yeah, I know. There's serious problem. Yes. It could be their financial issues, it could be their health issues, it could be their legal issues, it could be their disputes between the family or between the husband and wife, it could be kids' education issues, it could be anything. It could be relationship. So basically, I would not think we are always facing the negativity. I would not say that, because आप डॉक्टर के पास तभी जाते हो आपको लगता है कि डॉक्टर के पास कोई सोल्यूशन है. Correct. या आपको सोल्यूशन चाहिए. Correct. Right. So I always look any of my client like a patient. See, डॉक्टर को उनका प्रॉब्लम समझना जरूरी है. As a vastu consultant, you should have that empathy towards that client. But at the same time, what you rightly said, you should be detached also. Because आपका जो फोकस है, उनका प्रॉब्लम है, आपने समझ लिया, बट आपका फोकस उसके सोल्यूशन पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. कि अगर आपका फोकस वो प्रॉब्लम में ही आप ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाओगे तो आप उसको सोल्यूशन नहीं दे पाओगे. करेक्ट. यू हैव टू लुक बियॉन्ड दैट. See, there are a lot of things why they are into this situation. Sometimes there is too much high expectation. Expectation financially. Yeah. Over expectation. Or sometimes it's expectation from each other, especially in the relationship issues. Yes. And when it comes to legal things, this is basically decision making. A lot of things is because of your thought process, your mindset, and the decision making. So if you get involved in that, you will not be able to give the solution. So हमको operation और दवाई पे ज़्यादा focus करना important होता है rather than that. But yes, definitely we visit different places. There different factory हो गया या office हो गया या majorly residential clients होते हैं. So वो we are entering into some energy. वो energy का भी हमारे पे effect होता है. Absolutely correct. अगर वो family members को उसका कोई negative effect हो रहा है वास्तु का, तो हम पे भी हो सकता है. And we are actually interrupting that natural जो cycle है nature का, उसमें we are trying to interrupt. Why they are facing problem? Because there might be or there is many times there is some karmic data.
वो भी हो सकता है, करेक्ट. right? So you have to sometimes counsel the client also. So first of all, make them receptive, make them understand, and then we conclude to the solution. What is the best solution for them? So if you focus on the solution, then obviously you have to keep ourselves detached. Yes. Just one thing just to get added there. You mentioned about the karmic debt. That is something which I think probably we are unable to find that out. So many a times it happens that मेरे साथ ही होता है, like today we decided we are going to talk, मेरा आवाज़ बैठ गया. So how मतलब if I start thinking कि अरे ये मेरे को एक negative है, I am supposed to sit down and then say नहीं this is because of this. So do you think that people should okay at the same time accept the karmic debt, but at the same time do not give up? Absolutely. That's all. See, पिछले लाइफ के जो कर्मास हैं, we don't know who we were. एक जेंट्स एक लेडी भी हो सकता है. He could be an animal also, or he could be in any kind of creature. उस टाइम पे उसने क्या किया पता नहीं. पर definitely there is a karmic debt. If it's a positive balance, whatever you are enjoying in life, अगर आपका घर है, at least आपको रहने के लिए घर है, छत है. If you are having good family, at least आपको family है, बच्चे हैं. So a lot of people, like I just recently shared one story. They had everything, but they didn't have kids. So sometimes people have everything, but they don't have good health. They have a lot of money, financially they're prosperous, but they have legal issues. So there is definitely a karmic debt connection for that, but that doesn't mean that you should immediately give up. You should keep your efforts. Karma आपको करना है, इस जन्म में आपको जो अच्छा करना है. But at the same time, you have to be very conscious कि you don't do the bad karmas now. Consciously, yes. Okay, so past karmas can be corrected through the different processes, but इतना ही है कि उसका जो रिजल्ट है वो आपको सफर तो करना है. Absolutely. और जब वो बैलेंस जो नेगेटिव बैलेंस है वो खत्म होने को टाइम आता है, दैट इज समथिंग आई वुड से इट्स अ योग. When you get connected with astrologers, when that's the time when you get your thought process starts in your mind, and you try to get connected with some vastu consultant, and then give you a solution, help you with some solution, and then you are out of that. Correct. So this is how this process works. Correct. Then you have to be very conscious that now current karmas, at least I control them. Yes, you control them. You don't cheat anyone. You don't मतलब किसी से आपको बोलते हैं ना, मन से या वचन से या कर्म से किसी को दुख नहीं पहुंचाना है. Correct. Consciously we need to take those efforts and do it. Otherwise you get entangled in that. Yes, absolutely. Right. तो now coming to your second question कि जो वास्तव मेरा वीडियो YouTube का चैनल है. सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि वास्तु रूप ये नाम ही क्यों सिलेक्ट किया. अच्छा, उसके पीछे भी स्टोरी है. Actually, so story in the sense these are two words. Okay. वास्तु and रूप. Okay. So वास्तु यानी आपका घर, आपका मकान हो गया, फ्लैट है, जो भी है, बंगलो है, whatever, और या तो फिर आपका ऑफिस है या आपका फैक्ट्री. तो जहाँ पे आप वास करते हो वो है वास्तु. करेक्ट. उसके जो नियम होते हैं दैट इज कॉल्ड एज वास्तुशास्त्र. अब रूप क्या है कि बस वो चीज़ का रूप कैसा होना चाहिए, उस स्ट्रक्चर का रूप कैसा होना चाहिए. जैसे हम लोग इंटीरियर की बात करते हैं, तो व्हेन यू डू द इंटीरियर ऑफ योर हाउस, आप उसका लुक एंड फील की बात करते हो, तो वास्तु के एंगल से उस वास्तु का रूप, उस घर का रूप कैसा होना चाहिए. एब्सोल्युटली. सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, क्योंकि हम क्या करते हैं घर में उसका वास्तु का जो रूप है वही चेंज करने की कोशिश करते हैं. उसमें अच्छा पॉजिटिव एनर्जी कैसा आएगा, उसके लिए क्या यूज़ करना है, कौन से कलर्स या कौन से इंटरनल घर का अलाइनमेंट या अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, हमारा फोकस वही रहता है. एंड टू करेक्ट द वास्तु दोष डिफेक्ट्स जो भी. नाउ व्हाई आई केम इनटू द यूट्यूब चैनल, बिकॉज नाउ इट इज अ मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन. और क्या हुआ है कि पहले ये शास्त्र का नॉलेज था, लेकिन कुछ लिमिटेड लोगों के पास था, उनके पास एक्सेस नहीं था, और उस वजह से हम काफ़ी पीछे रह गए. हमारे संस्कृति में हमारा जो कल्चर है, तो इसमें सबके सॉल्यूशन के बारे में बात किया है. वास्तुशास्त्र में इट टॉक्स अबाउट सॉल्यूशन. करेक्ट. और मुझे इतने 12-13 साल के जो वास्तुशास्त्र का करियर है, इसमें लोगों को क्या क्या क्वेश्चंस आए, लोगों के दिमाग में क्या डाउट्स हैं, बस उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने एड्रेस करने का कोशिश किया है मेरे इस चैनल के द्वारा. वाओ. तो आई थिंक दैट जो एक लोगों का परसेप्शन होता है, कैसे कि 2-3 टाइप के लोग हैं. एक जिसे वास्तु ये शब्द के बारे में पता ही नहीं है, तो वास्तुशास्त्र तो दूर की बात हो गई. देन देयर इज सेकंड सेट ऑफ क्लाइंट्स की जिन्हें
वास्तु ये शब्द पता है, लेकिन उनके पास में तो अधूरी जानकारी है या गलत जानकारी है। उनका एक खुद का एक परसेप्शन है। और उसके बाद में एक थर्ड सेगमेंट है जिन्हें वास्तु के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज है, दे आर अवेयर हाउ वास्तु वर्क्स, उसमें क्या हाउ इज द साइंस, कैसा काम करता है, बट दे आर सीकिंग, दे हैव कार्विंग और दे आर सीकिंग मोर डीप नॉलेज, दे आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन देयर माइंड, जैसे मुझे भी थे 15-20 साल पहले, मुझे एड्रेस करने वाला कोई नहीं। तो आज एक चैनल, एक मेरा मीडियम है लोगों तक पहुंचने का, उनके डाउट्स दूर करने का, एक फ्री आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। एंड इफ पीपल एक्सेप्ट इट, पीपल लाइक इट, दे कमेंट इट ऑन माय चैनल, सो आई फील वेरी हैप्पी। Yeah, absolutely. बिकॉज जो नॉलेज है ये आपके पास जो ज्ञान है वो आपके पास आया ही इसलिए कि आप दूसरे तक पहुंचाओ। करेक्ट। सो गुड दैट यू स्टार्टेड दैट एज अ मीडियम, और आप उस पर मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू कीप शेयरिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज विद पीपल. नाउ राहुल, दैट आई नो यू वेल, you have a lot of lineage to Hindu mythology. You mentioned कि मैं बहुत सारे हिंदू के शास्त्र पढ़ता हूँ, एंड आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज फ्रॉम यू अर्लियर. तो कुछ स्टोरीज आप अभी हमारे साथ शेयर कीजिए जिससे ये मतलब एक्चुअली थोड़ा सा क्लैरिटी मिले कि पहले के ज़माने में वास्तु के रिलेटेड सॉल्यूशंस अवेलेबल थे, अभी क्यों नहीं है, और क्या ऐसा हमारे माइथोलॉजी में जो सॉल्यूशंस हैं वो हाउ इट इज़ रेलेवेंट एज ऑफ नाउ टुडे. राइट, वेरी गुड क्वेश्चन. यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपने एक वर्ड यूज़ किया माइथोलॉजी. सी माइथोलॉजी वर्ड इज फ्रॉम द वर्ड मिथ. ओके. एंड आई वुड से कि जो हमारे शास्त्रों में जो है, महाभारत है, रामायण है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसे स्टोरीज है, वो माइथोलॉजी नहीं है, वो मिथ नहीं है. Okay. See, archaeologists have also found lot of evidences of their existence. So I would have first objection through your channel for the word mythology. Okay. So I would request whoever is viewing this video, so just try to put that mythology word aside for some time. शास्त्र बोल देते हैं. So it's not a myth. It's a science, and there are a lot of evidences found on it. यस, अभी सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वास्तुशास्त्र की ज़रूरत क्या है, या वास्तु की ज़रूरत क्या है, और किसे ज़रूरत है. कैसा होता है कि हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि वानप्रस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम, ऐसे अलग अलग दिए हुए. तो गृहस्थाश्रम यानी कौन, कि जो आदमी अपने फैमिली के साथ में रहता है. गृह का मतलब घर यानी वास्तु. तो उसके लिए कुछ नियम है, जो नियम वास्तुशास्त्र के बारे में अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग पुराणों में, वेदों में, अथर्ववेद हो गया, ऋग्वेद हो गया, स्कंद पुराण है, गरुड़ पुराण है, नारद पुराण है, इसमें अलग अलग उसके पार्ट्स कवर किए गए. ओके. अब इसकी ज़रूरत क्या है? देखिए, आपकी फैमिली आ गई तो आपको उनके लिए आपको एफर्ट्स डालना है, उनके लिए अर्न करना है, उन एजुकेशन की तरफ देखना है, उनके खाने पीने के बारे में देखना है. एट द सेम टाइम आपको आपके फैमिली का और आपको प्रोटेक्शन चाहिए फ्रॉम क्लाइमेट, है ना. धूप है, बारिश है, सर्दी है, तो ये जो वातावरण है उससे प्रोटेक्शन के लिए आपको लगता है घर. तो वहाँ पे वास्तु आ गई. और हमारे शास्त्रों में कहा गया है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. तो धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ कोई रिलीजन नहीं है. धर्म यानी आपका ड्यूटी, आपके फैमिली की तरफ जो ड्यूटी है, आपको जो ड्यूटी दिया गया है. सिर्फ अभी कोई डॉक्टर है तो उसका ड्यूटी है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, या उसका जो है वो पेशेंट को ठीक करना, ये उसका ड्यूटी है. एक आर्मी ऑफिसर है या सोल्जर, उसका ड्यूटी है अपने देश की रक्षा करना. तो हर एक की एक ड्यूटी दी है, दैट इज कॉल्ड धर्म. और वो धर्म को करते करते जो वो सैलरी कमाते हैं, या जो भी उनका जो अर्निंग होता है, वो कमाना, अच्छी तरीके से कमाना, सात्विक तरीके से कमाना, सात्विक रूप से कमाना, और उसका जो उपयोग है वो अच्छे कर्मों में करना, अच्छे कर्म या अच्छे कामों में लगाना वो पैसा, है ना. या अपने कामनाओं की पूर्ति करना. अपनी कामनाएं यानी क्या, कि आपको एक अच्छा घर चाहिए, एक सुंदर घर चाहिए, घर में अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट चाहिए, आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, आपके बच्चों को आपको एक अच्छा एजुकेशन देना है ना.
आपको अच्छे कपड़े पहनना है, तो ये आपकी सब कामनाएं हैं। आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, सो ये कामनाओं की पूर्ति करने के लिए अर्थ कमाना है, पैसे कमाना और आपकी ड्यूटी करते करते, उसके बाद में आता है मोक्ष। तो ये सब चीज़ों को अचीव करने के लिए आपको एक नेचर के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो निसर्ग के कुछ नियम है, अगर वो घर या आपको वास्तु है उन नियमों के हिसाब से बना होगा, तो निसर्ग के वो जो शक्तियाँ हैं वो आपको ये आपका जो आपकी जो कामना है ये पूर्ण करने के लिए आपको सहायता करेगी। इसके लिए आपको वास्तुशास्त्र की जरूरत है, क्योंकि जब आपका मन प्रसन्न रहेगा, अब मन प्रसन्न कब रहेगा, जब आपके जो 5 सेंसेस है वो सेटिस्फाइड रहेंगे। यानी आप घर में आते हो, आपका आपके जो सेंस है, मतलब जो आपकी आंखें हैं, सेंस, सो ये 70% ऑफ इंफॉर्मेशन कैप्चर करते हैं, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, ओके, वी कैन से दैट। तो अगर आप किसी घर में जाते हो और उस घर में काफ़ी सामान फैला है, और एक घर में आप जाते हो जहाँ पे काफ़ी अच्छा इंटीरियर किया है, अच्छे कलर का यूज़ किया है, फिर सेकंड दूसरी चीज़ आती है वो है आपका स्मेल। घर में अगर साफ सफाई नहीं है, एक गंदी दुर्गंध आएगा। और वही अगर घर में आप अच्छा आपने पूजा किया है, धूप लगाई है, अगरबत्ती लगाई है, दिया लगाया है, या आपने घर में एयर फ्रेशनर का यूज़ किया है, सो आपको आपके जो सेंस जो है स्मेल का सेंस वो भी संतुष्ट हो गया। आपको उस घर में एयर लाइट वेंटिलेशन नहीं है वास्तु के हिसाब से, तो आपको वहाँ पे सफोकेशन फील होगा, तो आपका जो फीलिंग का जो सेंस है वो डिस्टर्ब होगा। आप किसी घर में जाते हो, वहाँ पे एक दूसरे के बारे में अच्छे ओपिनियन नहीं है, बहस होती है, झगड़े होते हैं, और वही आप ऐसे घर में जाते हो एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा उनका सिंक्रोनाइजेशन है, तो आपको कहाँ अच्छा फील होगा, जिस घर में जहाँ पे सुसंवाद हो। करेक्ट। तो ये सब जो सेंस को जो सेटिस्फाई करने के लिए जो होता है, उसका बैकग्राउंड में जो एक्टिव, वो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज का इम्बैलेंस या प्रॉपरली बैलेंस ये फैक्टर्स होते हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दीज आर ऑल इंटरकनेक्शंस। अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा कि एक कोई स्टोरी बताइए, सो मैं बताऊंगा कि महाभारत में एक स्टोरी आपके सामने सुनी होगी कि दुर्योधन है, वो जाते रहते हैं एंड उन्हें समझ में नहीं आता है ज़मीन है, तो पैर रखते हैं और लेकिन वहाँ पर पानी रहता है, वहाँ पे गिर जाते हैं, फिर उसके बाद में द्रौपदी हंसती है। सो दैट वाज अ ट्रिगर, दैट वाज अ बिगिनिंग ऑफ महाभारत। पर ये श्री कृष्ण जी को पहले से ही पता था। करेक्ट। तो उन्होंने कुछ प्लानिंग करके उस नगरी की ऐसी रचना की थी कि उसके ब्रह्मस्थान में उस टाइप का उस वक्त का, उस समय का जो इंद्रप्रस्थ था, उसका जो ब्रह्मस्थान था, वहाँ पे पानी आ गया था, गड्ढा और पानी, जो काफ़ी बड़ा दोष है ब्रह्मस्थान के हिसाब से, काफ़ी बड़ा वास्तु दोष है। अच्छा। और उस वजह से कौरव कभी महाभारत में जीत नहीं पाए और उनके वंश का पूरा नाश हुआ। अच्छा। तो ब्रह्मस्थान के जगह पे पानी तो मतलब बड़ा वास्तु दोष, काफी बड़ा वास्तु दोष है। अच्छा, ओके, दैट वाज मतलब प्लांटेड बाय कृष्णा ओनली। या इट वाज अरेंज्ड बाय them using that time, okay, that type of vastu consultant of that time. okay, so that means ये आपके वास्तु के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, आपके एनर्जीज, मतलब जो मैं समझी हूँ, एनर्जीज को बहुत इम्पैक्ट करता है, और एनर्जीज के बेसिस पे आप उस घर में कैसे हाउ डू यू स्टे इन दैट हाउस, वो फ़र्क पड़ता है। मतलब कभी कभी मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जब भी हम घर आते हैं तो आपको एक मतलब आपके बाहर के लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होता है कि जैसे ही आप घर आते हैं वो शांत हो जाता है। करेक्ट। सो लाइक वो यू आर एबल टू लीव इट आउट एंड देन आप घर आ सकते हो, तो वो एक वातावरण भी कह सकते हैं। वातावरण इज नॉट जस्ट एन एटमॉस्फेयर व्हिच इज रेडियो टेम्परेचर। वातावरण घर में कैसा है, कैसा आपको फीलिंग हो रहा है। आप कोई भी इंसान बाहर जाता है, कमाता है, बिजनेसमैन हो, जॉब हो, उसको आज टारगेट है, काफ़ी स्ट्रेस है लाइफ में। करेक्ट, एब्सोल्युटली। वो जब घर पे आता है तो उसके हाथ में कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए या उसको कैसा फील होना चाहिए। तो घर में आके अगर रिलैक्स फील होता है, सो दैट इज वन हिंट कि उस वास्तु में दोष नहीं है। और घर पे आके अगर उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो इसका मतलब उस घर में वास्तु दोष है। वास्तु दोष है, यस। सो लाइक अगर इसको हम थोड़ा सा आगे लेके चले तो आपको क्या लगता है कि जो भी घर आज बनते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग ओनर्स
बताते हैं कि ये वास्तु कंप्लायंट है, तो डू यू थिंक दैट देर इज़ अ नीड फॉर यूजिंग दिस वास्तुशास्त्र अ लॉट? बिकॉज वैसे भी ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रेस हैं, सो अगर आपका वास्तु ये स्ट्रेस लेवल को थोड़ा सा एनर्जीज को बैलेंस करने की वजह से मैनेज हो सकता है, सो व्हाई नॉट? तो आपको नीड लगती है ये करना ज़रूरी है अभी? Yes, definitely. Very well said. I was not expecting this question. हाँ. So, but it's very interesting question. कैसा है कि अभी तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी. हाँ, क्योंकि देखिए आप टीयर 1 सिटीज़ में भी आजकल टावर्स बन रहे हैं, टीयर 2 सिटीज़ में भी इनफैक्ट टावर्स हाई राइज बन रहे हैं. तो वेस्टर्न आर्किटेक्चर के हिसाब से डिजाइनिंग प्लानिंग डिजाइनिंग हो रहा है. पहले ऐसा नहीं होता था. अच्छा. पहले घर अलग तरीके से बनते थे. टॉयलेट घर के बाहर होता था, घर के ब्रह्मस्थान में खुली जगह होती थी. आज वो प्रैक्टिकल करना पॉसिबल नहीं है. सो वी हैव टू एक्सेप्ट द फ्लैट सिस्टम, अपार्टमेंट सिस्टम जो है. राइट. बट उसकी वजह से कोई दोष क्रिएट हो रहे हैं. और आज का जो लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस लाइफस्टाइल है, ओवर एक्सपेक्टेशन है, एक कॉम्पिटिटिव है. हर आदमी अपने आप को कॉम्पिटिशन में आगे ले जाना चाहता है. तो उसके लिए वो कुछ ऐसे काम कर बैठता है वो अचीव करने के लिए जो उसके कर्मा में ऐड हो जाती है. हाँ. सेम टाइम. ट्रू. बट देन आपको अगर आपके घर में अगर वो एनर्जीज या उसका जो वास्तु के हिसाब से उसका प्लानिंग डिजाइन सही होगा तो आपको कहीं ना कहीं हमेशा करेक्ट करता रहेगा. ओके. ऐसा भी होता है. ओह, ऐसा भी होता है. ऐसा भी ओके. सो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं और करना बहुत आवश्यक है. क्योंकि मैं देखता हूँ ना कि मैंने अभी कई क्लाइंट्स हैंडल किए हैं इंडिया में भी, इन महाराष्ट्र ऑल्सो, आउट ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो. तो अलग अलग मैंने लेआउट्स देखे हैं. हर एक का लेआउट स्ट्रक्चर अलग होता है. और अभी रिसेंटली मैंने जो पिछले 1.5-2 साल में देखा है पोस्ट लॉकडाउन, काफ़ी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है मुंबई, पूना, सिटीज़ में भी. तो उनके जब मैं फ्लोर प्लान देखता हूँ तो मुझे क्लाइंट को बोलने में बहुत तकलीफ होती है कभी कभी. जैसे आपने बोला था इमोशनल अटैचमेंट की, यार इसमें इतने परेशानी, इतने दोष है, तो इसको कैसे करें? तो बैलेंस तो हर चीज़ हो सकती है, करेक्शन हर सोल्यूशन हर चीज़ का है, लेकिन घर खरीदते समय आपके पास चॉइस होती है. तो इसलिए क्लाइंट मेरे पास आते हैं कि हमें कौन सा घर सिलेक्ट करें. तो उस समय भी एक चैलेंज हो जाता है कि मैं देख रहा हूँ कि इतने उसमें स्ट्रक्चर या उसका शेप में इतना प्रॉब्लम्स है. तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब आप प्लान पास करते हो किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट की भी सलाह लीजिए. छोटे छोटे जो करेक्शंस है वो तो आप कर सकते हो. आप कोई भी वास्तु 100% नहीं कर सकते हो प्लानिंग डिजाइनिंग के टाइम. कोई भी आर्किटेक्ट नहीं कर सकता है. उसके भी कुछ चैलेंजेस, लिमिटेशन होते हैं. डिजाइनिंग के लिमिटेशन है, FSI के लिमिटेशन है, लैंड के जो अवेलेबिलिटी है उसमें स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे फिट उसके चैलेंजेस हैं. बट फिर भी उसमें सोल्यूशन है तो करना बहुत आवश्यक है. क्यों? क्योंकि जब आज से 2 साल बाद में 2024, 25, 26 में काफ़ी लोगों को घर के पोजीशंस मिलने वाले हैं. आज ये दिक्कत नहीं है, लेकिन 2026 के बाद में 2028, 2030 में मैं कहता हूँ गारंटी के साथ में काफ़ी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होने वाला है इन लेआउट की वजह से. बट जब भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो वो तो एक बोल्ड लेटर में लिखा रहता है कि वास्तु कंप्लायंट. आज का वो फैड हो चुका है कि वास्तु कंप्लायंट लिखते हैं. करेक्ट. क्योंकि एक सर्वे किया गया था 4-5 साल पहले. उसमें अच्छा. ये पता चला था कि 80% ऑफ पीपल हु वांट टू हु आर बायर्स, न्यू होम बायर्स, दे कम विद अ वास्तु कंपास, है ना. दे सीक फॉर अ वास्तु गाइडेंस और इट शुड बी वास्तु कंप्लायंट. बट उनका नॉलेज लिमिटेड है. यहाँ पे क्या होता है कि दे डोंट टेक द एक्सपर्ट ओपिनियन. करेक्ट. आज सब इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है. तो वो इन्फॉर्मेशन लेके आप इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करते हो. उसमें क्या होता है कि आप प्रायोरिटी एंट्रेंस को देते हो और सिर्फ एंट्रेंस को देते हैं. नो डाउट एंट्रेंस तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग. देयर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, जैसे किचन हो गया, आपका ब्रह्मस्थान हो गया, आपके घर का वॉशरूम है, बेडरूम है, कर्ट्स है, बालकनी है, ये सब का भी इम्पोर्टेंट रोल है. तो एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट का अगर हेल्प लें तो उनको चॉइस करने में मदद होगी. और यही हाफ इंफॉर्मेशन का एडवांटेज कुछ डेवलपर्स उठाते हैं, क्योंकि उनको भी इतना ही नॉलेज होता है. उनकी भी गलती नहीं है. वो बोलते हैं कि क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है. क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ ओपनिंग, तो वो बस डोर का फेसिंग ईस्ट वेस्ट कर देते हैं. ओके. और क्लाइंट को तो दिशा भी लेने में दिक्कत होती है, कहाँ से कैसे अंदर जाते समय लेना है, बाहर आते समय लेना है, ब्रह्मस्थान से लेना है, इसमें भी कंफ्यूजन है. तो उसकी वजह से कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको अच्छा घर आप रिजेक्ट कर दो, और कई बार गलत डायरेक्शन लेने की वजह से आप खराब वास्तु का सिलेक्शन करते हैं. ये भी पॉसिबल है. अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है.
बहुत इम्पोर्टेंट है एंड आई थिंक आपके यूट्यूब चैनल उसके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी, बिकॉज अदरवाइज डिसीजन लेने में लोगों को अब इतना फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया है कि ऑथेंटिसिटी किसके ऊपर माने, ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. सो एक्चुअली सी इंफॉर्मेशन व्हेन देयर इज सम गाइड टू हेल्प यू लेट यू नो कि आप वो इंफॉर्मेशन को कैसे इस्तेमाल करें, देन दैट इंफॉर्मेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू नॉलेज. करेक्ट. और कब कैसा इस्तेमाल उस नॉलेज का करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, कैसा दैट द नॉलेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू विजडम. सो क्या वो क्लाइंट के लेवल तक वो एटलीस्ट इंफॉर्मेशन शुड कन्वर्टेड इनटू नॉलेज. करेक्ट. So half information, half knowledge is always very dangerous. Always. Yes, Should we all also understand. always consult doctor. Yeah. Taking medicines. बहुत बार ऐसा होता है कि आप एज अ वास्तु कंसल्टेंट किसी को कुछ गाइड करते हो कि ये पर्टिकुलर रेमेडी करना चाहिए आपको, और आपने वो रेमेडी सजेस्ट किया तो क्लाइंट बोलता है नहीं आपने कंसल्टेशन दिया, थैंक यू वेरी मच, बट मुझे वो रेमेडी करना नहीं है. एंड थोड़े दिनों के बाद वही क्लाइंट आपके पास आता है और बोलता है कि अरे आपने ये सजेस्ट किया था, ये मेरे घर में ये ऐसा अनटुवर्ड हो गया और नाउ व्हाट शुड आई डू. तो उसका विश्वास आपके ऊपर थोड़ा लेट आया, बट बाय द टाइम व्हाट एवर अनटुवर्ड हैड टू हैपन हैज हैपेंड. सो ऐसे कोई कहानियाँ आपके साथ हुई हैं क्या, एंड अगर हुई हैं तो आपने उसको कैसे हैंडल किया है? Yes, जितने भी अभी केसेस हैंडल किए हैं, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लाइंट होता है, हाँ. दे आर वेरी न्यू टू मी, करेक्ट. आई एम न्यू टू देम यस. एट द सेम टाइम. तो हर एक क्लाइंट के दिल में एक डर होता है, उसे सॉल्यूशन चाहिए होता है, लेकिन एट द सेम टाइम उसके लिए वास्तु नया सब्जेक्ट भी है. एस्ट्रोलॉजी के साथ आज पुराना हो गया, लोगों को पता है कि एक ज्योतिष क्या कहता है, क्या सॉल्यूशन देते हैं. वास्तु कंपैरेटिवली पिछले 10-15 साल अगर हो गए होंगे, काफ़ी लोग इसके तरफ एज ए सॉल्यूशन देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए नया है. हाँ. So that is one of the करेक्ट. When I go to my clients visit, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनको एजुकेट करता हूँ कि ये साइंस है, ये कैसे काम करता है, और उन्हें बताता हूँ कि आपके लाइफ में किस टाइप का प्रॉब्लम होगा. उस फ्लोर प्लान को देख के हमें समझ में आ जाता है, या उनको अगर ये प्रॉब्लम है तो उसके पीछे कनेक्शन क्या है, ये उन्हें समझाता हूँ, और फिर ये शास्त्र कैसे वर्क करता है. सो आपको एक यू हैव टू सेट राइट एक्सपेक्टेशन ऑल्सो. ओके. इट इज़ नॉट अ मैजिक कि आज आपने कोई दवाई ले ली और कल सुबह बुखार उतर गया. हाँ, ऐसा भी नहीं है. वास्तु में ऐसा नहीं होता. इट टेक्स टाइम, क्योंकि वेन वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंसिंग द एनर्जीज, बैलेंसिंग, क्रिएटिंग द हार्मनी इन द हाउस, तो उसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होता है. हमने तो सोल्यूशन दिया, हमने तो उसका एनालिसिस किया, बताया क्या दोष है, उसके क्या सोल्यूशंस है, बट इम्प्लीमेंटेशन उनके हाथ में होता है. और कई बार मैंने ऐसा देखा है कि उनका वो योग ही नहीं होता है. हाँ, वो भी है. अच्छा. है ना. तो जब मैं कार्मिक डेट की बात कर रहा था, हाँ, तो वो अभी भी थोड़ा कुछ बचा है. और ऐसा भी है कि उनके लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी आई कि उनको सोल्यूशन जो चाहिए है, वो सोल्यूशन उनके पास में तक, उनके पास, उनके घर तक आया, लेकिन वो सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए बिकॉज ऑफ इनडिसिसिवनेस वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, एंड देन स्टिल दे आर कंटिन्यूइंग द सफरिंग. आपको कुछ भी हो सकता है, जो भी उनके XYZ प्रॉब्लम है वो. और ऐसा देखा है मैंने. आज भी मैंने कुछ केसेस है, मैं मॉनिटर करता हूँ, तो 2 साल 3 साल बाद में भी आज तक उन्होंने डिसीजन नहीं लिया, वो अभी भी सफ़र कर. तो मेरा क्या कहना है कि आपने घर लिया है लाखों रुपए का, आप आपके फैमिली के लिए मेहनत कर रहे हो, 15 घंटे 10 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हो, कमा रहे हो, और फिर भी प्रॉब्लम है, तो ये सब किसके लिए कर रहे हो? एब्सोल्युटली. उस एक लाइफ आपका या आपकी जो लाइफस्टाइल किस डायरेक्शन में जा रही है. और अगर आपको अगर किसी चीज़ का उस आपकी कामना को पूर्ण करने के लिए अगर किसी चीज़ का सपोर्ट मिलता है तो क्या हर्ज है. लोग लाखों रुपए का इंटीरियर करते हैं, तो वास्तु का कंसल्टिंग लेने में क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा और, क्योंकि अगर कुछ चीज़ आपके फेवर में अगर आपको करते आई, या आपका जो प्रॉब्लम है, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो अगर आपको मिनिमाइज करते आया, या आप जिस प्रॉब्लम में फंसे हुए हो उस प्रॉब्लम से आपको निकलने का अगर आपको सोल्यूशन मिलेगा, तो कंसल्टिंग करने में क्या प्रॉब्लम है? करेक्ट. एक जस्ट एक कहना चाहूँगा मैं, कई बार लोग कहते हैं कि यार मैं जाता हूँ घर में, तो किसी ने मुझे, एक व्यक्ति ने इनवाइट किया होता है
पर उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं ऐसा होता है कि वो उसे इस शास्त्र में बिलीव नहीं करते। करेक्ट, हाँ, सो दैट इज फाइन। ऐसा किसी पे कंपलसरी नहीं कि हर एक ने ये इसको फॉलो करना ही चाहिए और विश्वास रखना ही चाहिए। पर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, आप बोलते हो कि हम इसे बिलीव नहीं करते, तो उसे प्रूफ कीजिए कि ये बिलीव क्यों नहीं करना चाहिए। क्या आपने उसके लिए वक्त दिया है? ये शास्त्र आप बोल देते हो ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ये काम नहीं करता, मैं इसे नहीं मानता, पर क्यों नहीं मानते? आपने मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपको खुद का एक्सपीरियंस नहीं आया, लेकिन फिर ये क्यों नहीं मानना चाहिए? इस पर आपने कुछ रिसर्च किया है क्या कि ये सही है कि, या हो सकता है इससे फायदा भी हो लोगों का? इस पर लोग रिसर्च करने में अपना टाइम नहीं लगाते। नहीं, जजमेंट बहुत आसानी से कर लेते हैं, बट दे डोंट वांट टू स्पेंड टाइम। हाँ, और उसमें नुकसान किसका है? उनका ही लॉस है, उनका ही नुकसान है। करेक्ट, नॉट टेकिंग अ डिसीजन इज द बिगेस्ट रिस्क। या करेक्ट, ये बहुत बड़ा इशू है कि बहुत लोग जैसे ये ऑकल्ट साइंसेस जिसको हम लोग बोलते हैं, वास्तुशास्त्र एंड बहुत सारे वो क्या बोलते हैं, फिजिक्स और बायोलॉजी दे कैन अंडरस्टैंड, बट दीज साइंसेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि लोग इसको समझ सके, हाँ। इस पर लॉजिक बिठा सके, या फिर उसको एक्सेप्टेंस लेवल नहीं आता है उनमें। यस यस, सो इसके मैं एक्सेप्ट करूंगा, बट उसके लिए उन्हें खुद को एफर्ट डालना पड़ेगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली। आप कोई भी अब बच्चे को स्कूल में भेज देते हो, हाँ, उसको किताब दे देते हैं मैथ्स, अब मैं बोलूँ कि यार नहीं, मैं तो नहीं मानता कि 2 × 2 4 होता है, हाँ, तो दैट इज, आप बिलीव करो या ना बिलीव करो, ये जो साइंस है वो अपना काम करेगा। करेक्ट, आपकी लाइफ में वो इन्फ्लुएंस करेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग में वो इन्फ्लुएंस करेगा, आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली वास्तु के दोष के रिजल्ट्स आपकी लाइफ में इम्पैक्ट आना ही है। एक केस शेयर करना चाहूँगा मैं। एक क्लाइंट ने मुझे बुलाया था उनके घर पे वास्तु चेक करने के लिए, तो उन्हें कुछ मैंने बेसिक 2-4 चीज़ें बताई कि ये भाई ये वॉलपेपर चेंज कर लो, मंदिर का पोजीशन चेंज कर लो, और कुछ करेक्शन है वास्तु की रेमेडीज करो। तो उन्होंने वास्तु की रेमेडीज नहीं की, लेकिन फिर भी उनको रिजल्ट्स आए। पर ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा होगा। करेक्ट, ये भी पॉसिबल है। कभी कभी उस जगह की एनर्जी उनको ज़रूरत थी, वो बैलेंस हो गई, उनका एक पर्पज सॉल्व हुआ, बाकी चीज़ों का क्या। बाद में वो फैमिली अपग्रेड किया, उन्होंने सिटी अपग्रेड की, एक अच्छे ब्रांड के कॉम्प्लेक्स में गए, एक काफ़ी अच्छा बड़ा ब्रांड है। उन्हें कहा कि, उन्होंने मुझे फ्लोर प्लान बताया, उन्हें मैंने कहा कि नहीं, ये आपको वास्तु सिलेक्ट नहीं करना है। वो रेंट पे ही था उनका फ्लैट, अच्छा, जो सिलेक्ट करने वाले थे, पहले ओन था, वो उन्होंने सेल किया, अच्छी वास्तु थी। तो मैंने बोला कि आप इस वास्तु में जा रहे हैं, इसमें आपको दिक्कत होगा, तो ठीक है ना, एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है, उसमें गलती नहीं है कि देख लेंगे, देखते क्या होगा। सही है। फिर 1 साल, आई थिंक 6 महीने, 1 साल बाद में उनका फ़ोन आया कि नहीं, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, हमारे हेल्थ इश्यूज बढ़ गए। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है, अंडरस्टैंड। तो अब उस वक्त पे ये बहस करने का पॉइंट नहीं था कि मैंने पहले ही बताया था। तो एज ए वास्तु कंसल्टेंट आपका काम होता है कि उसको सोल्यूशन देना, वो कभी भी आपके पास आए। करेक्ट। तो उन्हें सोल्यूशन दिए कुछ बैलेंस करने के लिए, बट वो उनको बहुत लेट रियलाइज हुआ। तो उस पैन में आपको कितने तकलीफें झेलना पड़ी, कितना मेंटल स्ट्रेस आपको झेलना पड़ा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डिलेइंग टेकिंग द डिसीजन इज द बिगेस्ट रिस्क। That is काफी केस स्टडीज है। that is really brings to me to the next point. Okay, अभी we go to a doctor. Okay, some doctor, मेरे केस में हुआ था कि मेरे को I had certain swellings in my lungs or something like that, ऐसा कुछ था। तो they had said कि नहीं, we need to do some surgery kind of a thing, एंड उसमें आपको ऑपरेट करना ज़रूरी है, यू हैव टू गेट दैट ऑपरेटेड, अदरवाइज उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सो एज यूजुअल सर्जरी बोला तो घर में पैनिक कि पापा सर्जरी करना है, अरे हाउ मच इज़ द चांसेस, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच कीप्स ऑन हैपनिंग। फिर लोग कहते हैं कि नहीं, वाई डोंट यू गो फॉर अ सेकेंड ओपिनियन। ठीक है, तो वी वेंट टू अ सेकेंड डॉक्टर, क्योंकि एक वाला सोल्यूशन हमको जचा नहीं, या फिर हमको लगा कि यार ये प्रॉब्लम हो सकता है। दे गो टू द सेकेंड पर्सन एंड द सेकेंड पर्सन सेड, हु सेड दैट यू नीड अ सर्जरी, अरे मेडिसिन से सॉल्व हो सकता है। तो
ये वाला सिचुएशन एज अ वास्तु कंसल्टेंट आपके लाइफ में आता ही होगा. आई थिंक देयर माइट बी, देयर आर क्यों मनी, बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स हैं जो आप कुछ एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देते हो, उसको जाके वो लोग क्रॉस वेरीफाई करते हैं. तो ऐसे चीज़ों को आप कैसे हैंडल कर लेते हो? ये हैंडल मुझे नहीं करना है, हैंडल क्लाइंट को करना है. करेक्ट. क्योंकि मैं तो अपना काम करता हूँ मैं हाँ. बेस्ट सोल्यूशन देने के लिए. हाँ. बट मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हर एक वास्तु कंसल्टेंट का टेक्निक अलग होता है. ओके. मैं ये Okay. कभी नहीं कहूँगा कि ये वास्तु कंसल्टेंट गलत है, ये अच्छा है, ये गलत है. क्लाइंट को ये देखना है कि किसका एक्सपर्टाइज कैसा है, कितना एक्सपीरियंस है, उनके बात करने का तरीके से आपको पता चल जाएगा. आपको जज करना उनके है. वर्किंग के स्टाइल से आपको पता चल जाएगा हम्म. कि कितना डीप में इनका नॉलेज है, ये आपके सॉल्यूशन को समझ पा रहे हैं, इसका इस प्रॉब्लम आपके प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं. सॉरी, आप प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं, आप उनके प्रॉब्लम को समझ के उसको सॉल्यूशन देने की कैपेसिटी उस वास्तु कंसल्टेंट की है क्या. तो ये जज क्लाइंट को करना चाहिए. क्रॉस चेक कर सकते हैं पर इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है. Yeah, देखिए, आप यू हैव टू absolutely. अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन क्लाइंट के दिमाग में क्यों आते हैं. कि सबसे पहले वास्तु का जो करेक्शन का जो कॉस्ट होता है वो वेरी होता है केस टू केस बेसिस. कंसल्टेंट की फी वेरी होती है उसके एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे. करेक्ट. उसने जो उसका टाइम डाला है, जो एफर्ट्स डाले हैं उस सब्जेक्ट में रिसर्च करने के लिए, और वो जो आपको सॉल्यूशन देना चाहता है उसमें जो उसको टाइम लगेगा, ट्रैवल टाइम है या, तो उसके लिए तो वो चार्ज करेगा ही. करेक्ट. आप जैसे आप अपने आप को अपग्रेड करते हो एक जॉब से दूसरे जॉब में, आप सैलरी हाइक करते हो. क्यों करते हो? क्योंकि आपका एक्सपर्टाइज, आपका स्किल सेट्स इंप्रूव हो रहा है. करेक्ट. एब्सोल्युटली. Yeah. तो ये क्वेश्चन अराइज इसलिए होता है कि कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. करेक्ट. जैसे अभी हम घर का इंटीरियर करते हैं, तो घर के इंटीरियर करते समय हम इंटीरियर डिजाइनर को अपॉइंट करते हैं, तब हमारा माइंडसेट क्लियर है कि मेरा ये बजट है 5 लाख 25 लाख जो भी है, या इंटीरियर डिजाइनर का ये कॉस्ट होगा. वी आर, आवर माइंड इज ओपन, बट विच इज नॉट द सेम केस विद वास्तु. Yeah, it depends upon the remedies and solutions, right? इट डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द वास्तु दोष. Yes, rather. हाँ. कितने दोष हैं, कितने हाँ. सीवियर दोष हैं, हाँ. उसको इजीली बैलेंस किया जा सकता है क्या, या उसको बहुत पावरफुल ट्रीटमेंट देना है. हाँ. उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहा है वो कितना सीवियर है, उसको बैलेंस करने के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेमेडीज देने की ज़रूरत है क्या, या मल्टीपल रेमेडीज देने की ज़रूरत है क्या. इन सब का जो एनालिसिस है वो वास्तु कंसल्टेंट तभी कर पाएगा जब एक उसके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे, Absolutely. और दूसरा वो उसकी जो केस है, क्लाइंट की केस को डीप में समझ पा रहा है. हाँ. So it's not just about east, west, north, south, and some colors and some entrance issue. There are a lot of things which are related to your mandals. वास्तु के जो परमंडल होते हैं, energies होती हैं. You have to understand, you have to calculate that. देखिए क्या है कि वास्तु में सिर्फ डिरेक्शन नहीं होते हैं, एयर लाइट वेंटिलेशन है. अच्छा. जो पृथ्वी का जो नेचुरल मैग्नेटिज्म है वो रोल प्ले करता है. कॉस्मिक एनर्जीज प्ले करती है रोल. सोलर एनर्जी है, वास्तु के मंडल है, शक्ति है, वो रोल प्ले करते हैं. आपका घर का इंटीरियर अलाइनमेंट कैसा है, वेट बैलेंसिंग कैसा है, कौन से कलर के आपने पेंटिंग्स यूज़ किए, कौन से कलर्स आपने कौन से वॉल पे कौन सा वॉलपेपर यूज़ किया है. लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर एंड दे कंटिन्यूसली डिस्टर्ब द एनर्जीज विद इन. और वही अगर आप बैलेंस कर सको, देखिए कई बार कुछ छोटी छोटी वास्तु टिप्स जो होती है वो काम कर जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो वास्तु टिप हर एक के लिए काम. हाँ, एग्जैक्टली. वो कस्टमाइज करना पड़ता है. बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हाँ. तो जो आपको ऑनलाइन मिलता है वो एक देने की कोशिश की गई है, अलग अलग वास्तु कंसल्टेंट उनकी तरफ से देने की कोशिश करते हैं, जो गलत नहीं है, बट आप उसको कॉपी पेस्ट मत करो. करेक्ट. अब एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको ये कॉमनली पता चल जाएगा कि साउथ में रेड कलर यूज़ किया जा सकता है. ओके. और ये भी कहा है कि साउथ में या साउथ वेस्ट में बेडरूम का इस्तेमाल आप कर सकते हो. मतलब आपकी बेडरूम अगर साउथ या नैऋत्य दिशा में या साउथ वेस्ट में हो तो अच्छा होता है. तो अगर आपकी बेडरूम साउथ में है और आपने अगर वहाँ पे लाल कलर का प्रयोग कर दिया तो क्या होगा. सी, आपको ये समझना है कि लाल कलर का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है. लाल कलर आपको एक, रेड कलर आपको एक एनर्जी देता है, एक विगर देता है. बेडरूम में आदमी रिलैक्स होने के लिए जाता है. पूरा दिन भर का जो उसका फिजिकल एक्सर्शन होता हाँ, है वो उसे एक अच्छी आरामदायी नींद की ज़रूरत होती है. करेक्ट. 6 घंटा 7 घंटा 5 घंटा उसे वहाँ पर रिलैक्स होना है.
और वो कलर आपको एक्टिवेट करता है, मतलब यानी रेड कलर जो है आपको एक्टिवेट करता है, तो उसका यूज आपको किस तरीके से करना है. यू कैन नॉट डू रेड कलर, आई हैव सीन दैट. अच्छा, रेड कलर इन द बेडरूम इज नॉट एक्सेप्टेबल देन. कलर, एग्रेसिव कलर्स इन द बेडरूम. करेक्ट. सो वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो. तो क्लाइंट को ये देखना ज़रूरी है कि वो वास्तु कंसल्ट कितना उसका नॉलेज है, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसमें आर्ट है क्या वो चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए. करेक्ट. सो ये बेसिकली आता है, इट टेक्स लॉट ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. या आई नो दैट. मतलब वो क्लाइंट में वो पारखी नज़र होनी चाहिए टू इवैल्यूएट कि हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन कस्टमाइज होना पड़ता है. इट कैन नॉट बी कॉपी पेस्टेड. दैट इज़ वन थिंग. एंड सेकेंड थिंग इज ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट हाउ योर कंसल्टेंट इज एबल टू एक्सप्लेन टू यू हाउ ही हैज़ अंडरस्टूड द प्रॉब्लम. तो ये आपको यू हैव टू इवैल्यूएट जब आप देखते हो. एंड देन उसने अगर सपोज कोई सोल्यूशन बोला है तो फिर उसको वापस जाके क्रॉस चेक करने में कोई पॉइंट नहीं है. सो यू बेटर एक्सेप्ट वॉट एवर ही इज सेइंग एंड टेक दोज रेमेडीज. आपको बेसिकली बिलीव करना चाहिए. हाँ, एग्जैक्टली. ट्रस्ट होना अगर चाहिए. आप किसी को डाउट करके या जज करने के हिसाब से अगर आप किसी को कोशिश करोगे, वो आदमी आपको सॉल्यूशन देने आया है, तो आपका फोकस वो उस पर होना चाहिए कि वो क्या कह रहा है. हाँ, instead of doubting him or instead of evaluating him by talking to him and judgment pass नहीं करना है. Absolutely. Yes. अच्छा, ये मैंने बहुत सुना है from various consultants कि आप घर में थोड़ा सा फर्नीचर्स को थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ चेंज कर दो तो यू डोंट नीड रेमेडीज़. तो वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में हाथ करते हैं कि नहीं रेमेडीज़ की ज़रूरत नहीं है, चेंज पोजीशंस. और कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं रेमेडीज ही होना चाहिए, सिर्फ पोजीशन चेंज करने से क्या होता है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस इन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल. तो इसको बैलेंस कैसे करें, और आपके ओपिनियन में ये मतलब हाउ फार दीज टू थिंग्स आर टुगेदर और अपार्ट, मतलब कैसे आप इसको हैंडल करते हो? मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि दो वास्तु कंसल्टेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए. वो अपना एक एक्सपीरियंस है, अपना एक टेक्निक भी होता है. और साथ ही साथ कैसा होता है कि एक चीज़ करने से आपको परमानेंटली इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिलेगा. हाँ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एक ही चीज़ करने से टिप्स जो है मिल रहे हैं, जो ऑनलाइन अवेलेबल है, वो आप यूज़ कीजिए, वो गलत नहीं है. पर एक चीज़ करने से आपको परमानेंटली और हर चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा ऐसा नहीं है. करेक्ट. अभी मान लीजिए कि मैं बोलता हूँ कि आपको अग्नि दिशा में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको ऑरेंज कलर का प्रेजेंस लाना है. अगर वहाँ पे किचन नहीं है तो क्या वो 100% सोल्यूशन देगा? पार्शियल सोल्यूशन देगा. लेकिन अगर वहाँ पे कोई मेजर डिफेक्ट है, यानी वहाँ पे टॉयलेट आ गया है, मतलब फायर एलिमेंट की जगह वाटर एलिमेंट आ गया है, कट्स आ गए, मल्टीपल डिफेक्ट्स आए, सीवियर डिफेक्ट है, तो क्या सिर्फ कलर से बैलेंस हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की जो एनर्जी है, वहाँ की जो शक्ति है, वो बहुत डिस्टर्ब है. उसको बैलेंस करने के लिए आपको अलग टेक्निक या यंत्रों की सहायता जरूरत पड़ेगी. क्योंकि आपको उस एनर्जी को वहाँ पे अट्रैक्ट करना है, उसे बैलेंस करने के लिए. और कुछ केसेस में हमको वहाँ पे एनहांसमेंट भी देना पड़ता है, बूस्टर भी देना पड़ता है. सो होता क्या है कि एक सोल्यूशन हर जगह कॉमनली कॉपी पेस्ट या वो नहीं हो पाता. दैट इज द बेसिक थिंग दैट कि हर चीज़ को कस्टमाइज करना है. अभी कुछ रेमेडीज प्लांट्स के बारे में भी है. ये जेड प्लांट है, तो जेड प्लांट को आप यहाँ पे रख दीजिए नॉर्थ में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा. बट ये सब एनहांसमेंट्स हैं, दीज आर नॉट द करेक्टिव मेजर्स, ऑल द एनहांसमेंट्स. ये आप वॉल पे ये कलर लगा लीजिए, या ये चीज़ आप फर्नीचर इस तरफ कर दीजिए. सो दीज आर द एनहांसमेंट. फर्नीचर कहाँ कि अगर वेट बैलेंसिंग आपको देखना है, आपका फेसिंग चेक करना है, करेक्ट करना है फेसिंग, तो उसके लिए आप फर्नीचर अलाइनमेंट कर सकते हो. लेकिन अगर उस दिशा में अगर दोष है, वो दिशा कटी हुई है, या वो दिशा में अगर ईशान कोण में आपका किचन आ गया है, तो आप कैसे बैलेंस करोगे? ओके. तो एनर्जीज का बैलेंस करना इम्पोर्टेंट होता है. तो कौन से वास्तु कंसल्टेंट को क्या सही लग रहा है और क्या सही है, या मैं सही हूँ आप गलत हो, इससे ज़्यादा उस वास्तु के लिए, उस क्लाइंट के लिए सही चीज़ क्या है, इस पे फोकस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. हाँ, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एक्चुअली. क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी है देन यू आर राइट और आई एम राइट. ये गेम में हमने पढ़ना ही नहीं है. यस. ओके.
that gives a lot of solutions to these. क्या होता है कि क्लाइंट ऑलरेडी आपके पास कुछ एक्सपेक्टेशन लेके आया है हाँ, और ड्योर ओपनिंग की वजह से वो होता है कंफ्यूज, करेक्ट. और क्लाइंट को हमेशा या मेजर केसेस में शॉर्ट और क्विक सॉल्यूशन चाहिए होता है. तो वो इस कभी कभी इस टाइप में फंसने की गुंजाइश बढ़ जाती है. करेक्ट. पर वो फिर उसे सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, सही सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, और उस वजह से उसका इस शास्त्र पे विश्वास उड़ जाता है. हाँ, ये सबसे बड़ा डेरिमेंटल है, क्योंकि उसका ये शास्त्र को गलत ठहराने लग जाता है, क्योंकि बिकॉज वैसे भी उस पर विश्वास नहीं है. अब ऐसा कुछ हो जाता है तो दे जस्ट पुट द ब्लेम ऑन द शास्त्र एंड से अरे शास्त्र राइट नहीं है, विच इज़ नॉट द केस. में जाके सोचने की बहुत जरूरत है. हाँ, विच इज़ नॉट द केस. राइट. अभी आपके इतने सारे टिप्स मिल गए हैं राहुल के. आई फील यस, पीपल विल रियली कंसिडर दैट दिस पर्टिकुलर शास्त्र इज़ अ साइंस एंड इट नीड्स टू बी गिवन दैट काइंड ऑफ अ रिस्पेक्ट. ये एक फाइनल मुझे ऐसा लगता है कि भाई एवरीबडी शुड trust it and start using it extensively. मैं ये जानना चाहती थी कि according to you, अभी आपके इतने 15 years or 16 years of experience you have in this particular science and you have learned a lot of things from various people, तो आपको क्या लगता है कि what is happening in your community like of वास्तु consultants? क्या चीज़ें आपको लगती हैं कि वो लोग वो लैक करते हैं और आप उनमें कैसे मदद कर सकते हो इन सब चीज़ों के लिए? बिकॉज आई अंडरस्टैंड दे ऑल्सो कम फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्टडीज. यू मैंशन दैट के एंगल और द वे दे लुक एट इट इज़ ऑलवेज डिफरेंट. सो हाउ कैन यू हेल्प देम टू एनहांस देयर नॉलेज? First of all, I would not like to compare. Yeah, that is absolutely true. That is true. That is true. No comparison. Yes. At the same time, consultants should be aware हाँ. that client is coming to you with lot of expectations. हाँ. So like Correct. already बहुत problem है. Correct. और वो आपके पास में एक आशा से आता है हाँ. solution देने के लिए. तो आप सबसे पहले उसका प्रॉब्लम है प्रॉपर्ली समझिए. एक प्री कंसेप्शन से आप मत जाइए. हाँ. दूसरी चीज़ ऐसी है कि अगर आपको प्रॉपर उस चीज़ का नॉलेज है तो उस पर आप डीप में बात कीजिए या उस चीज़ का डीप नॉलेज लीजिए और उसका सॉल्यूशन आप क्लाइंट को दीजिए. या तीसरा चीज़ ऐसा है कि आप जब किसी वास्तु में जाते हैं, किसी घर में जाते हैं, तो कॉम्पस लेके जाइए. मोबाइल ऐप का इस्तेमाल मत कीजिए. ओके. वो मिसलीडिंग होता है, वो हैंग भी हो सकता है कई बार, प्रॉब्लम चांसेस है. हाँ. तो कॉम्पस का यूज़ कीजिए, प्रॉपर टेक्निक डायरेक्शन का बराबर लीजिए. हाँ. और उसे प्रॉपर एजुकेट भी कीजिए उस क्लाइंट को कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो. डायरेक्शन ले, ऐसा नहीं कि आप कॉम्पस लेके चले गए और बता दिया कि नहीं भाई ये चीज़ यहाँ पे रखना है, इसको यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे आप सोफ़ा कर लीजिए, यहाँ पे आप किचन बना लीजिए या यहाँ पे आप स्टडी टेबल बना लीजिए. ऐसा नहीं. उनका जो घर का फ्लोर प्लान है उसे प्रॉपरली पेपर पे डालिए, टू द स्केल रीड्रॉ कीजिए, उसे उस पर प्रॉपरली ग्रीडिंग कीजिए और उसके बाद में उसको इवेल्युएट कीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए. और आजकल ये जो ट्रेंड चल रहा है ना कि एक हफ्ते में वास्तु कंसल्ट बन जाइए. हाँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. आप वास्तु एक्सपर्ट बन जाइए. हाँ. ऐसा भी मैंने एड्स देखी है फेसबुक पे हाँ. कि लाखों कमाए ये कोर्स करके. हाँ. तो ये जो एंगल है, फाइनेंशियल एंगल जो है हाँ. कमाने का, अगर आप इस एंगल से इस प्रोफेशन में आए तो ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा, ना ही क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल होगा. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. क्योंकि ये फील्ड ही बहुत अलग है. हाँ. ये फील्ड ही बहुत अलग है. पहले आपको इस फील्ड को समझना होगा और आपको आखिरी चीज़ ऐसा है कि आपको कंटिन्यूसली इस साइंस से रिलेटेड जो बाकी के साइंसेस है वो सीखोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है, हाँ. आपके लिए बेनिफिशियल है. एंड लास्ट थिंग इज कि आपको हर एक फील्ड में या स्पेशली वास्तु के फील्ड में आपको कंटिन्यूसली अपग्रेड करना पड़ेगा. करेक्ट. अपने आप को जितना आप अपग्रेड करोगे उतने मल्टीपल सॉल्यूशंस आप अपने क्लाइंट को दे पाओगे. हाँ. उतने अच्छे तरीके से उन्हें उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा. करेक्ट. और Absolutely. कैसा होता है ना गायत्री जी की आपने सॉल्यूशन बता दिया, अब उसका योग है, उसका डिसीजन है उसे इम्प्लीमेंट करना या नहीं करना, क्योंकि अल्टीमेटली बेनिफिट तो क्लाइंट का है. पर आप उस पर फोर्स मत कीजिए, उसे आप इसे पुश नहीं कर सकते. आप उसे बताइए प्रैक्टिकली ये क्यों करना है, इससे उनका फ़ायदा क्या है. करेक्ट. पर ऐसा नहीं कि एजुकेट कीजिए. एजुकेट भी करना है उनको,
ये भी करना है। कई बार लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है कि वास्तु के रेमेडीज इतने कॉस्टली होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इजीली क्लाइंट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पर उन्हें वो कन्वे करना इंपॉर्टेंट है कि उनके लिए क्या बेनिफिशियल है। हाँ। और अगर क्लाइंट नहीं बोलता है नहीं करना है मुझे फॉर एक्सवाइजेड रीजंस, तो ऐसा नहीं कि आप उनसे रिलेशन ही खराब कर लीजिए। करेक्ट करेक्ट, वो फिर भी उनके साथ या बनाए उसको- रखिए रिलेशन। कभी कभी क्लाइंट से ही मुझे फीडबैक मिला, हमने इस वास्तु कंसल्टेंट को किया था, उन्होंने मुझे ऐसा बताया, बट कुछ कभी कभी उनके बातों में कभी कभी एरोगेंसी लगता है, या कभी उनके सॉल्यूशन उतने जस्टिफाइड या लॉजिकल नहीं लगते। हम्म, तो हम्म, ये कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लाइंट से आप फीडबैक लीजिए, हम्म। फिर फीडबैक लेके उसे इम्प्रूव कीजिए, नेक्स्ट विजिट में आप उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। सो ऐसी कुछ बातें हैं कि जो ध्यान में रखिए। ये आई कैन ऑल्सो रेजोनेट। अभी कई बार ऐसा होता है कि बीइंग इन द प्रोफेशन ऑफ सीए, कुछ लोगों को नहीं मालूम होता है कि मैं इनकम टैक्स में अपील कैसे फाइल करूं, तो हायर अ कंसल्टेंट, क्या प्रॉब्लम है? तो छोटा सा, अगर सपोज आप वो वास्तु कंसल्टेंसी में आपको लग रहा है कि बाबा ये पर्टिकुलर जो चीज़ है मुझे नहीं आती, तो आई कैन कंसल्ट एन एक्सपर्ट के ओपिनियन ले लीजिए और फिर आप कितनी भी सर्व द किताबें पढ़ क्लाइंट। लीजिए, हाँ, कितनी भी लॉ की किताबें पढ़ लीजिए, आप लॉयर नहीं बन सकते। Correct उस है। हिसाब से आपको कोई गाइड करना चाहिए, आपके पास एक फॉर्मल सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। हाँ। आप कितने भी किताबें पढ़ ले, आप डॉक्टर नहीं बन सकते। आपको प्रैक्टिकल ऑपरेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप कितने भी किताबें पढ़ लीजिए, सिर्फ किताबें पढ़ के आप इंजीनियर नहीं बन सकते। तो वास्तु का भी वैसे ही है, आपको हाँ। प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। आपको उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है कि ये शास्त्र जो इतने 10,000 साल से चला आ रहा है, आपको सर्वे कर रहा है, हम्म, तो ये कैसे हेल्पफुल है, क्यों है, उसमें और डीप रिसर्च करना बाकी है, और बहुत रिसर्च करना बाकी है in fact। तो उसके लिए टाइम दीजिए। टाइम दीजिए, खुद को उसमें इन्वेस्ट कीजिए, तभी आप आपको उसमें time एक invest करना एक्सपर्ट पड़ेगा। बन पाएंगे। और एंड ऑब्वियसली confidence। जितने ज़्यादा क्लाइंट्स आप हैंडल करेंगे उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, Exactly। विच वो इज़ तो हर चीज़ में है, हाँ, same चीज़, यूनिवर्सल same रूल है। बिल्कुल। सर्विस के इंडस्ट्री में ये यूनिवर्सल रूल ही है। आपके इतने सालों के करियर में आपने ऐसी कुछ लर्निंग्स हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपको लग रहा है कि बाबा नहीं, ये अगर मैं बताऊंगा तो 4 लोगों को इसकी मदद होती है। क्योंकि मैं ये बोलना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है कि आदमी जो सीखता है, ठीक है, अब वो सीखता है, गलती करता है और फिर सीखता है। जब मैं गलती करती हूँ और मैं सीखती हूँ, वो मेरी तरफ सीमित रह जाता है। तो लेकिन बहुत बड़े लोग जो ज्ञानी लोग हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि दूसरों की गलतियों से सीखिए। तो अगर आप वो सीखते हैं तो आपकी ग्रोथ फास्टर होगी। मतलब इंस्टेड अगर मेरे को 5 साल लग गए तो उनको 3 साल में ग्रोथ मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा लर्निंग है कि आप अगर गलतियां कर रहे हो और आपको उससे कोई सीख मिली है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और ये मैं क्यों कर रही, मैं भी इसको ऐसा कर रही हूँ कि एक किताब के तौर पे मैं कर रही हूँ कि जो हम लोगों ने, क्लाइंट्स लोगों ने मिस्टेक्स किया, उसको हमने एक किताब में लिखा है कि सल्यूशन क्या मिला। सो दैट हेल्प्स पीपल कि आप उसको पढ़ो और वो गलतियाँ आप ना करो। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने टॉप 5 लर्निंग्स बताएं आपके लाइफ के। गायत्री जी, इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं ऑलरेडी पार्ट बाय पार्ट, बट मैं फिर से इसमें कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा कि आपको एज ए कंसल्टेंट बिहेव करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ये इसे आप मनी अर्निंग का सोर्स मत समझिए। राइट। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने इसे स्टार्टिंग में पढ़ा, फिर मैंने 2009 में कुछ इसका सर्टिफिकेशन लिया, लेकिन तभी मैंने पार्ट टाइम ही किया, क्योंकि मेरा एंगल एक्सपीरियंस लेने का था ज़्यादा। तो मैं डायरेक्टली इसमें फुल टाइम नहीं आया स्टार्टिंग में। केसेस हैंडल किए, क्लाइंट्स के इश्यूज देखे। कई बार क्या होता है कि आप सॉल्यूशन देते हो, ये सॉल्यूशन इस क्लाइंट के केस में वर्कआउट कर गया, बट इस क्लाइंट के केस में वर्कआउट नहीं हो रहा है। करेक्ट, ऐसा होता है। करेक्ट। आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, Correct. आपको वापस आके एनालाइज करना है Correct. कि क्यों इनको रिजल्ट नहीं आया, क्या इसका और कोई सॉल्यूशन हो सकता है, या कोई और बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है तो कैसे। तो आपको अपने नॉलेज को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते रहना चाहिए। अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे तो ये इतना डीप साइंस है ना कि अगर मैं इस पे 10-15 साल भी रिसर्च करूँ और तो मुझे और ऐसा लगेगा कि और इसमें कुछ डीप है और कुछ बाकी है, और एक्यूरेटली मैं इसको फाइन ट्यून करके सॉल्यूशन दे सकता हूँ। हाँ। तो ये एक मेरा लर्निंग है कि वास्तु कंसल्टेंट के हिसाब से आपको अपग्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। आपको कंटिन्यूसली फीडबैक लेना इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम मैं लर्निंग बोलूँगा क्लाइंट के हिसाब से। देखिए, क्लाइंट अलग अलग सिचुएशन में है,
उसको ऑलरेडी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ऑलरेडी हेल्थ के इश्यूज हैं, तो उन्हें हमेशा शॉर्टकट चाहिए रहता है। लेकिन अगर क्लाइंट बोलता है कि मुझे ये चाहिए, तो आप हमेशा क्लाइंट के हिसाब से बिहेव मत कीजिए। ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रहा हूँ। आपका फोकस ये होना चाहिए उसके लिए क्या सही है। कई बार क्लाइंट बोलते हैं कि मुझे ये सॉल्यूशन, आपने ये 1 2 3 4 सॉल्यूशन बताइए, एक काम करते हैं हम इस सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, या हम ये सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर वो उसके लिए वो सॉल्यूशन सफिशिएंट है और एनहांसमेंट की ज़रूरत है तो ठीक है। लेकिन अगर क्लाइंट बोलते हैं कि यही कर दो और ये मत करो और फिर ये करो, तो ऐसा उस फ्लो में आपको नहीं जाना चाहिए। आपको क्लाइंट के बारे में सोचना है कि उसके लिए बेनिफिशियल क्या है, बेनिफिशियल क्या है। 2 या 3 ऑप्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो उन्हें उसे स्ट्रेस करना है, फोर्स नहीं, आपको स्ट्रेस करना है। कन्विंस करिए। नहीं, कन्विंस करने का ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, बिकॉज वी आर हियर वास्तु कंसल्टिंग में कोई आप किसी को कुछ सेल नहीं कर रहे, करेक्ट। आप उन्हें सोल्यूशन दे रहे हो। हाँ। कैसा है कि डॉक्टर आपको क्या कहता है कि ये एक टैबलेट लीजिए, एक कैप्सूल है, एक सिरप है, इसे इतने टाइम लीजिए, इतने mg का वो रिकमेंड करके देते हैं आपको। अगर आप बोले कि नहीं मुझे ना सिरप नहीं चाहिए, आप इंजेक्शन दे दो, अगर वो फिजिबल है तो डॉक्टर इंजेक्शन देगा। लेकिन अगर आपको पता है कि ये प्रॉब्लम इंजेक्शन से ही सॉल्व होगा, या ये प्रॉब्लम सिरप से ही सॉल्व होगा, और इसके लिए आपको टैबलेट और सिरप और ये सब कुछ लेना ही है, तो आपको वो ही रिकमेंड करना है क्लाइंट। तो क्लाइंट इज राइट फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू, करेक्ट। बट आपको बताना है कि उसके लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो फायदा होगा वो क्लाइंट का होने वाला है। करेक्ट। एंड डोंट गेट इनटू कंपटीशन कि इसमें आप कम्पीट मत करना चाहिए कि ये वास्तु कंसल्टेंट से मुझे और कम्पीट करना है। हाँ, ये मत करिए। आप उस एंगल में आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। हाउ बेस्ट यू कैन बिकम एज ए वास्तु कंसल्टेंट, हमें उस पर फोकस करना है। तो पिछले कुछ सालों में मैंने फुल टाइम जब से आया मैंने इसी पे ही फोकस किया है ज़्यादा करके, कि मैं अपने नॉलेज को कैसे एनहांस करो। आई डोंट वांटेड टू मेक इट अ ज्ञान सेशन, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि कैसे अपने आप को आपको अपग्रेड करते रहना चाहिए, किस किस अलग अलग एंगल से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपको अपग्रेड करना इम्पोर्टेंट है। कि अल्टीमेटली अगर आपको भगवान ने इस कार्य के लिए चुना है, तो वो एनर्जीज भी आपको सपोर्ट करेगी, आपको एफर्ट डालना है। बराबर, करेक्ट, एब्सोल्युटली दैट्स रियली बैंग ऑन। जो आप बोल रहे हो कि अगर किसी ने आपको इस चीज़ के लिए चुना है, तो यूनिवर्स ने चुना है, तो ऑब्वियसली आपको सिर्फ एफर्ट डालना है, बाकी सारी चीज़ें तो दैट विल टेक केयर। वेरी नाइस, थैंक यू राहुल, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू। एंड मुझे कोई दो राय नहीं है कि see the message which you have given is that keep learning, keep executing, and then अपने आप को enhance करने की कोशिश कीजिए, that will take care of everything। तो आप automatically एक known और expert consultant बन ही जाओगे, and obviously the money will flow back। मतलब वो बोलते हैं ना कि पैसे तो आएगी झक मार के, but then आप अपना क्या बोलते हैं कैपेबिलिटीज़ को increase कीजिए and start लर्निंग फ्रॉम द मतलब द शास्त्र विच इज़ देयर, विच इज़ डीप डाउन। आप बोल रहे हो 15 साल भी इनफ नहीं होगा उस शास्त्र को समझना, सो विच इज़ अ रियल रिसर्च टू बी डन। थैंक यू सो मच राहुल, एंड इट वॉज रियली माई प्लेजर टॉकिंग टू यू। Same here. Thank you very much for inviting me for this podcast. Yeah, thank you. Wish you all the best. Thank you so much.